शनिवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बर्दवान में भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के 6 ग्राम पंचायत इलाकों में भी चुनाव की तैयारियां पुरजोर तरीके से चलाई जा रही हैं। रानीगंज के सियारसोल इलाके के गर्ल्स कॉलेज में DCRC सेंटर बनाया गया है। यहीं से रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायत क्षेत्र में चुनाव करवाने के लिए मतदान कर्मी बैलेट पेपर सहित विभिन्न मतदान सामग्रियां संग्रह किए। यहाँ पर 1 से 11 काउंटर बनाए गए हैं, जहां से मतदान कर्मी अपने अपने तय क्षेत्रों के लिए बैलेट पेपर सहित अन्य मतदान की सामग्रियां लेकर गए। मालूम हो कि रानीगंज प्रखंड के 6 ग्राम पंचायतों में लेकिन यहाँ सीटों की संख्या 93 है। पंचायत समिति में सीटों की कुल संख्या 16 है। रानीगंज प्रखंड में जिला परिषद की 2 सीटें हैं। इस बार रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के लिए 85 मतदान केंद्रों के साथ 2 सहायक मतदान केंद्र मिलकर कुल 87 मतदान केंद्र है। पुरुष मतदाताओं की संख्या जहां 42,230 है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 40,062 है। कुल मतदाताओं की संख्या 82,292 है। मालूम हो कि इस बार के मतदान में हर बूथ पर 5 बूथ कार्यकर्ता होंगे। वहीं जहां 1250 से अधिक मतदाता है, वहां 6 बूथ कर्मी रहेंगे। बताया जाता है कि रानीगंज प्रखंड में ऐसे 11 बूथ है। इस चुनाव में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए सैन्य बल की मौजूदगी में वोट देने की मांग को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग को इस साल के पंचायत चुनाव में 822 कंपनी केंद्रीय बल देने के लिए आवेदन करने को कहा गया था। हालांकि इन सब के बावजूद विपक्ष ने मांग उठाई है कि कई इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती नहीं की गई। हालांकि पता चला है कि रात में ही हर बूथ पर एक अर्धसैनिक बल उपलब्ध किए जाएंगे। दूसरी ओर मौके पर मौजूद रहे हमारे संवाददाता ने पूरे खबर की विस्तृत जानकारी ली। इलेक्शन कमिशन द्वारा निर्धारित आगामीकाल 8 जुलाई सारा राज्ये होते चलेছে 30स्तरीय पंचायत भोट एक दफाয়। এখন আমরা চলে এসেছি ঠিক পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ শহরের মানে রানীগঞ্জ ব্লকে উপস্থিত রয়েছি। রানীগঞ্জ ব্লক এরিয়ায় যেখানে আপনাদেরকে আমাদের PBTV ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাবো সেই দৃশ্য। এখন আমরা উপস্থিত রয়েছি রানীগঞ্জ গার্লস কলেজ, যেটি রানীগঞ্জের সিয়ারসোল এলাকায়, যেখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই চিত্রপট আমাদের PBTV ক্যামেরার মাধ্যমে ইলেকশন কমিশন দ্বারা নির্ধারিত মানে প্রেসক্রাইব করা যে ফরম্যাট, সেই ফরম্যাটে DCRC দেওয়া এবং নেওয়ার পালা। আজকে পোলিং পার্সোনেলেরা যেখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি 1 থেকে 11 নম্বর কাউন্টারে বিভিন্ন বুথের এখানে মানে পোলিং লাগানো আছে 1 থেকে 11 নম্বর, যেখানে ফার্স্ট পোলিং পার্সোনেল যারা রয়েছে তাদের এখানে রেজিস্টার ওনারা কপিতে করছেন। তারপর ইলেকশন কমিশনের যে নিয়মাবলীগুলি রয়েছে সেই নিয়মাবলী অনুসারে কি এখানে জিনিসগুলি নেবে ভোট করা মানে ভোট হবে সেই জিনিসগুলো, যেমন ব্যালট বক্স, ব্যালট পেপার এবং মেটাল সিল, এবং তার সাথে মানে পোলিং পার্সোনালে মানে যিনি অফিসার রয়েছেন ওনার এখানে সাইন থাকবে। সেই বিষয়গুলি আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। আগামীকাল সকাল থেকে শুরু হয়ে যাবে ভোট পর্ব। সেই দৃশ্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি আমার প্রতিনিধিকে দেখাবো যে এখানে যে সিস্টেম, যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে ইলেকশন কমিশনের, যে ক্রাইটেরিয়া অনুসারে যে নিয়ম অনুসারে মানে যেসব জিনিসগুলো নেওয়া হচ্ছে এবং তারা মানে এক একটা মানে কাগজের মধ্যে মানে করে নিচ্ছে মানে হিসেব করে, সেই বিষয়গুলি আপনারা সচক্ষে দেখুন। এবং আরও জানাবো কাল থেকে ভোট পর্ব সকাল থেকে শুরু হবে। রানীগঞ্জ ব্লক এরিয়া ভোটের পর্ব, রাজ্যের সাথে সাথে রানীগঞ্জ ব্লকেও বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলিতে ভোট পর্ব শুরু হবে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন। আমি সম্রাট। যে ভোট করার জন্য যেসব জিনিসগুলো নিলেন আর কি, মানে কি ক্রাইটেরিয়া ছিল, কিভাবে নেওয়া হলো? মানে সাইন করে যেমন করে ভোটের প্রসিডিউর যেমনভাবে করা হয় সেভাবে নিয়েছি। আচ্ছা, কী নেওয়া হলো, মানে কী জিনিস? ব্যালট বক্স নেওয়া হলো, নানা রকম পেপার, হ্যাঁ ইত্যাদি আর কি, আপনার সব। আচ্ছা, কোন বুথে আপনারা মানে করবেন, বসবেন? আমরা ওই নিউ এগরা বসবেন। আচ্ছা, কতজন আপনারা থাকবেন ওখানে? পোলিং পার্সোনাল 5 পুলিশ থাকবে। থ্যাংক ইউ। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PBTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।
मेरिया क्षेत्र के नीमडांगा प्रोजेक्ट स्थित 7 ग्राम इंक्लाइन में आज सुबह इलाके में रह रहे लोगों की सही रूप से बिजली देने की मांग को लेकर यहां के स्थानीय लोगों ने मैनेजमेंट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर घंटों मैनेजमेंट का घेराव किया। इस मौके पर ईसीएल श्रमिक राम सहित साहू ने कई बातें कही एवं इस मौके पर ईसीएल के कई भी श्रमिक मौजूद रहे। मैनेजमेंट हम लोगों को मतलब लाइन में देने में मतलब बहुत सक्षम नहीं है, दे नहीं सक रहा है। अच्छा, 1200 बिजली बिल कट रहा है हम लोगों का और 2 से 3 घंटे मतलब 4 घंटे लाइन दे रहा है। पहले जो एक साल पहले यही मतलब इंजीनियर बोला था कि हमको 3 घंटे खाली काटने दीजिए, तो हम लोग इसका बात को मतलब मान लिए थे। 3 घंटे मतलब काटने का मतलब 7 से 10 मतलब काट रहा था। कुछ दिन चला है, उसके बाद अभी मतलब सिस्टम कर दिया है, डायरेक्ट मतलब एक खोल दिया है और मतलब बस थोड़ा सा गर्म हो रहा है, गिर जा रहा है, फिर 5 मिनट लाइन आ रहा है, आधा घंटे मतलब खत्म हो जा रहा है। तो हम लोगों को मतलब यही मांग है कि मतलब बिजली हम लोगों को जैसे पहले मिलता था वैसी चाहिए। चीज़ के ऊपर हो रहा है, जो ड्यूटी कर रहा है उसको मतलब आराम नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोगों को मतलब टिफिन नहीं बन पा रहा है, मतलब खाना नहीं बन पा रहा है। रात में अंधेरे में 5 बजे से लाइन चल जा रहा है। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है, लड़का लोगों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है। अब नई शिफ्ट वाला आदमी मतलब 8 बजे 9 बजे ड्यूटी से उठ रहा है, तो 2 बजे लाइन आ रहा है। मतलब बोलिए मतलब कहाँ आराम करेगा ये मतलब मोटा मोटी मतलब 6-7 महीना हो गया हम लोग बर्दाश्त कर रहा है। अब ये सुनिए नहीं रहा है। जब भी आ रहा है तब बोलता है कि मतलब मेरा हाथ में कुछ नहीं है, मेरा हाथ में कुछ नहीं। बस यही मतलब बोल के मतलब पल्ला झाड़ दे रहा है। मैनेजमेंट अभी क्या बोला? अभी मतलब आ रहा है, एजेंट को मतलब बुलाया है, सिविल एरिया इंजीनियर आ रहा है, उसके बाद मतलब जो हो फैसला होगा। नहीं इस में बड़ा ये होगा, कोलियरी बंद करेंगे। ये तो इसी भी आज मतलब बंद किया हुआ है, यह होगा तो मतलब कोलियरी बंद करेंगे, सब लाइन बंद करेंगे। आज तो मतलब 7 बजे से बंद है। ना खाली यही का एक लाइने का खाली बंद है, खाली क्वार्टर का कोलियरी है, ऑफिस में है। कोलियरी वाला मतलब गर्म नहीं हो रहा है, ऑफिस वाला गर्म नहीं हो रहा है। 20-25 टोक मतलब सेंटर वाला के मतलब ट्रांसफार्मर गर्म हो जा रहा है। आपका नाम? राम साई साहू। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। अंडाल ब्लॉक के विभिन्न इलाके और बाजारों में तृणमूल कांग्रेस अंडाल ब्लॉक अध्यक्ष व जिला परिषद उम्मीदवार कालूबरन मंडल के विरुद्ध पोस्टर पड़ा मिलने से तृणमूल कांग्रेस समर्थकों में भारी आक्रोश है। पोस्टर में कालूबरन मंडल के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग और उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही ऐसे भ्रष्टाचार नेता को वोट न करने का उल्लेख भी किया गया। पोस्टर अंडाल थाना, नॉर्थ बाजार, श्रीरामपुर तथा अन्य इलाके में जगह जगह पड़ा दिखाई दिया। इस संबंध में कालूबरन मंडल ने कुछ बातें कही। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে পোস্টার পড়েছে, কি বলবেন? এদের নিজেদের মধ্যে একটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। উনি তো 5 বছর সভাপতি ছিলেন অন্ডাল ব্লকে এবং 5 বছর জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এদের মধ্যে তৃণমূলের 4-5টা গোষ্ঠী, সব ওদের গোষ্ঠীর মধ্যেই কাজ হ্যান্ডবিল বেরিয়ে যাচ্ছে, অনেক কিছু উল্টাপাল্টা সব জায়গায় শব্দ শুনছি। আমাদের এর মধ্যে কিছু বিশেষ কিছু বলার নাই। বাংলার মানুষ এবং অন্ডালবাসীর মানুষ, অন্ডাল ব্লকের মানুষ এর প্রতিফল 8 তারিখে দিবে। আপনি যে পোস্টারটা পড়বেন কি ওর মধ্যে সত্যি কিছু লেখা আছে কি ভুলভাল আছে? একদম সত্যি লেখা আছে, একদম 100% সত্যি। আমরাও কানে শোনা জিনিস আর আজকে হ্যান্ডবিলে দেখছি গোটা বাজারে ছড়িয়ে আছে। আপনার নাম? আমার নাম সোহন রাবানি, মন্ডল ব্লক সভাপতি বিজেপি। কি বলবেন এটা নিয়ে? এখন ইলেকশনের টাইম, কাল ইলেকশন, আজকে পোস্টার দিচ্ছে। কোনো ব্যক্তি কোনো নাম দিয়ে দেয়নি, একটা অন্ডাল সিটিজেন ফার্ম বলে করে নাম দিয়ে করে এটা পোস্টারটা ছাপানো হয়েছে। এটা বিরোধীদের চক্রান্ত এবং আমার বিরোধী যারা আছে তাদের চক্রান্ত। তো এটা নিয়ে কোনো এটার উপরে গুরুত্বই আমি দিচ্ছি না। মানুষ ব্যালট বক্সে জবাব দেবে। এর মানুষ, অন্ডালের মানুষ জানে যে কালুবরন মণ্ডলের কীরকম তার কর্মকাণ্ড, সেটা অন্ডালের মানুষ অবশ্যই জানে। আমার আশা রাখি কোনো মানুষ এই যেটা এরা করেছে, যেটা রিপ্লেট ছড়ি করে, যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি মানুষকে করার চেষ্টা করছে, সেই বিভ্রান্তিতে কেউ কান দিবেন না। দল যেমন আছে দল সেইরকম থাকবে এবং আমি জোর করে বলতে পারি বিরোধী বলে কোনো দেখতে পাচ্ছি না।
আগামী নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে বক্সেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে কে মানুষের জনপ্রতিনিধি হচ্ছে। अंडल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। राज्य सरकार के अधीन बिजली उत्पादन केंद्र दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में पिछले दिनों कोयले की गाड़ी गायब होने का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि अब प्लांट के भीतर से गार्डों की लापरवाही के कारण कीमती लाखों का सामान ठिकाने लगाने का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया है। प्लांट में कार्य दूसरे विभाग के मजदूरों ने ठिकाने लगाने के दौरान 2 बोरे में बंद तांबा के बंडल को जब्त किया एवं गार्ड रूम में घुसकर पूछताछ शुरू कर दी। मजदूरों द्वारा गार्ड अधिकारी से कड़ी पूछताछ करने लगे, जिससे गेट के समीप तनाव व्याप्त हो गया। मामले को रफा दफा करने के लिए अधिकारी ने गार्डों की लापरवाही करने की गलती को स्वीकार करते हुए मामले को शांत कराया। उल्लेखनीय है कि डीपीएल के अधीन विभिन्न ठेकेदारों की कीमती बिजली यंत्रांश को विभिन्न स्टोर में रखा जाता है। बिजली के मशीनों एवं यंत्रांशों की जिम्मेवारी सुरक्षा गार्डों पर रहती है। वहीं नियम है कि बिजली के यंत्रों को एक स्टोर से दूसरे स्टोर ले जाने के लिए मेमो का होना जरूरी होता है। उक्त चालान को ड्यूटी में तैनात सुरक्षा गार्ड को दिखाना पड़ता है। मेमो की जांच के बाद उक्त माल को गाड़ी की निगरानी में दूसरे विभाग में भेजा जा सकता है। शुक्रवार डीपीएल के 7 नंबर यूनिट से कीमती तांबे का बंडल को नियमों को ताक पर रखते हुए गार्ड की मौजूदगी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा था। तभी कुछ मजदूरों की नजर उन मालों पर पड़ गई। श्रमिकों को संदेह होने पर माल को रोकते हुए मेमो की मांग करने लगे, जिससे गार्ड भौचक्का रह गए एवं मेमो देने से इनकार कर दिया। देवव्रत साहा दीपक राम नामक श्रमिक ने बताया कि बिना मेमो के ही 2 बोरे में कीमती तांबा गार्ड की निगरानी में एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे जा रहे थे। वहीं प्रबंधन को इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं इस विषय में डीपीएल के जनसंपर्क विभाग अधिकारी सौगता मित्रा ने बताया कि घटने की कोई जानकारी नहीं है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ওটাও সিকিউরিটি রুম, তো এটা আর মালটা শিফট করছিল হরিয়ানা স্টিল। এটা আমি জানতে চেয়েছিলাম স্যারদের, এটা কি, ওটাই স্যার এখন ডিসকাস করছে আমাদের সাথে যে মালটা আমাদের মানে আমরাই বলেছি, স্যাররা বলছে আমরাই বলেছি যে মালটাকে শিফট করতে। আমরা বলেছিলাম স্যার মালটা শিফট করবো, তাহলে তো আমাদের ছেলেরা করবে, সিকিউরিটি স্টাফেরা। আচ্ছা, কি মাল কি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শিফট করতে কোনো নিয়ম মেনশন করতে হয়? আমাদের যতটুকু জানা আছে একটা মেমো লাগে। আচ্ছা, তো কি এটার মধ্যে কোনো মেমো ছিল না? না, এখনো অবধি কোনো মেমো ছিল না, যতটুকু স্যাররা যেটুকু বললেন যে ছিল না। তাহলে এটাকে অবৈধভাবে মালটাকে পাচার হয়ে যাচ্ছিল কি? দেখুন, মালটাকে পাচার হওয়া বলবো না, কেন মালটা আর একটা রুমে শিফট হচ্ছিল, চোখের সামনে সেটা রুমে, কিন্তু মালগুলো ছিল সবই কপার জাতীয়। কি ওটা মানে মালটা কি মানে? কপার। আচ্ছা, সব তামা জাতীয়, সব তামা জাতীয় মাল ছিল। ওইটা নিয়েই কথা হচ্ছে, এখনও কথা হচ্ছে স্যারদের সাথে। স্যাররা কতটা কি বলছে আমরা দেখছি, বাকিটা আপনাদেরকে আরও বলা হবে। আমার নাম দেবব্রত সাহা, ডিপিএল 57 হেডে কাজ করি আমরা। কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি এই যে পরবর্তীকালে যেন আমাদের ছেলেরা এই কাজগুলো যেগুলো করে, যেন হরিয়ানা স্টিল বা আদার্স কোনো সাইডে, ওরা স্ক্যাপ পার্টি বলে পরিচিত হরিয়ানা স্টিল, ওরা কেন মালগুলো বার করবে? আমরা তো ধরবো যে ওরা মালগুলো অনৈতিকভাবে নিয়ে যাচ্ছে। এইটুকুই স্যারদের কাছে বলা, স্যার হ্যাঁ মেমো দিয়ে বার করা হবে স্যারদের কাছে, এইটুকুই আমরা বলেছি। একদম হবে এইটুকু। আজকে তাহলে কি আপনাদের সন্দেহ আছে কি মালটা মানে চুরি মানে করার জন্য কোনো না এখন কোনো ছিল? এটা বলবো না সন্দেহ, কেন মালটা চোখের সামনে দিনের বেলায় হচ্ছিল, রাতে হলে হয়তো সন্দেহ থাকতো, দিনের বেলাতে সন্দেহ বলবো না। কত মানে টাকার ওইটা মালটা হবে? মালটা তো অনেক কপার ছিল, অ্যামাউন্টটা তো ঠিক কপারের হিসেব তো বলা যাবে না। কত কুইন্টাল হবে তাহলে? 2 বস্তা তো ছিল একটা 2 বস্তা কপারের মাল, এটুকুই। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। अश्वनी चौरसिया नामक ठेकेदार ने कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर और उनके साथ रहने वाले दीपक गुप्ता पर आरोप लगाया है कि दोनों ने उनसे 84,000 की रंगदारी की मांग की है।
अश्विनी चौरसिया ने आरोप लगाया है कि कल आसनसोल के केटी रोड स्थित गुलाम सरवर के घर में उनको शाम 6 बजे से लेकर रात के करीब 11 बजे तक बिठा कर रखा गया था और उनसे रंगदारी की मांग की गई। जब प्राथमिक रूप से उन्होंने रंगदारी देने से मना किया तो गुलाम सरवर, दीपक गुप्ता और उनके अन्य साथियों ने मिलकर उनकी पिटाई की। आखिरकार उनको मानना पड़ा और उन्होंने चेक लिखकर दे दिया। उन्होंने कहा कि यह चेक उनको मजबूरी में लिखकर देना पड़ा क्योंकि वह अकेले थे और गुलाम सरवर तथा दीपक गुप्ता अपने साथियों के साथ उनकी पिटाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह एक ठेकेदार हैं और गुलाम सरवर के वार्ड में आसनसोल नगर निगम के बहुत से कार्य करते हैं जिनके लिए उनसे रंगदारी मांग की जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत आसनसोल उत्तर थाने में की है। उन्होंने कहा कि पहले तो शिकायत नहीं ली जा रही थी, लेकिन आखिरकार उनकी शिकायत दर्ज की गई। আমার সঙ্গে আমাকে ডাকলেন, তারপরে গোলাম সরবার দীপক গুপ্তা দুজনে মিলে ডেকে ডাকলেন ফোনে কি তুমি আসো। তো আমি 6টার সময় ওনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে গোলাম সরবার বাড়িতে, হ্যাঁ, কেটি রোড, হ্যাঁ। তো ওইখানে গেলাম আমি। যাওয়ার পরে আমাকে ওনারা বস করালেন। বস করার পরে বললেন কি একটি লিস্ট বার করলেন। উনি কোথাও থেকে লিস্ট নিয়েছিলেন। তুই তো অনেক টাকার কাজ করেছিস, তুই অত টাকা দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি বললাম কী জন্য টাকা দিব? হ্যাঁ, বলছে না দিতেই হবে। তারপর দীপক ফট করে হাত ছেড়ে দিল। তারপরে দুজনে মিলে প্রচুর মারলো, আমার হাত ভেঙে গেছে। গোলাম সরবার, দীপক গুপ্তা, আদার্স লোক আরও ছিল, তাদেরকে আমি চিনি না, বুঝলেন না। হ্যাঁ, তারপরে ওরা কোপাট বন্ধ করে দিল। কোপাট বন্ধ করে আর্মস ছটালো, দীপক গুপ্তা আর্মস ছটালো। হ্যাঁ, দাদাগিরি আর কি, দিতে হবে, কাজ করেছে আমার ওয়ার্ডে, এটাই আর কি। আমি কন্ট্রাক্টই করি, মানে আমার ওয়াইফের নামে লাইসেন্স আছে, আমি দেখভাল করি। হ্যাঁ, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওনার ওয়ার্ডে আমি অনেক কাজ করেছি। প্রথমে ওইটার জন্যে ধরুন উনি মাছ খুঁজছে, প্রথমে কাজ আমি করেছি। হ্যাঁ, টাকা দিতে হবে, টাকা দিয়ে এইটা তো আমি জানি না, বলছে দাদাগিরি টাকা হলো আর কি, এর মানে তাই হলো। 8,40,000 চেক নিলেন, জবরদস্তি চেক নিলেন, দেখে পরে চেকও নিয়েছেন, ততক্ষণ ছাড়েন নাই, মেরেছেন। হ্যাঁ, চেক দিয়েছি। কী করবো আমি একাই, আমাকে 12টা রাত পর্যন্ত এখানে রেখেছেন, 11টা 12টা বেজে গিয়েছিল। হ্যাঁ, পুলিশকে জানিয়েছি, চিঠি দিয়েছি, ডায়েরি দিয়েছি, সব দিয়েছি। আমাকে এগ্রিমেন্টও সই করাইছেন, ফলস এগ্রিমেন্টকে আমি ধার দিয়েছি, এই টাকাটা তুই অতদিন পরে দিবি, ওটা উনি লেখাইছেন, এগ্রিমেন্টও করাইছেন। পুলিশ নানুকুর করছিল, লেকিন আজকে নিয়েছে, আজকে আমাকে জিডি নম্বর দিল। এটাতে জিডির নম্বর তো আমরা জানি না কী মানে হয়, লেকিন চিঠিটা রিসিভ করেছেন উনি কালকে। হ্যাঁ, আজকে জিডি নম্বরটা দিলেন। আমার নাম অশ্বিনী কুমার চৌরसिया, कालीपड़ी बाजार। इस बारे में जब हमने गुलाम सरवर से बात की तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सरासर बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौरसिया एक ठेकेदार है जो आसनसोल नगर निगम के काम का ठेका लेते हैं। गुलाम सरवर ने कहा कि अश्विनी चौरसिया अक्सर दीपक गुप्ता से अपने काम के लिए पैसे उधार लेते थे और कुछ दिनों पहले भी उन्होंने दीपक गुप्ता से पैसे उधार लिए थे। जब दीपक गुप्ता अपने पैसे वापस मांग रहे थे तो अश्विनी चौरसिया उनको बताया कि अभी तक उनका पैसा नहीं मिला, जिससे लेकर ही यह सारा मामला हुआ है। उनके सारे आरोप बेबुनियाद है। बेबुनियाद इल्जामात। इसका मसला ये है कि एक कॉर्पोरेशन, चूंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है और किसी काम के सिलसिले में दीपक गुप्ता से वो फ्रेंडली लोन लिया था कि ये काम, चूंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप ज़रा सा पैसा दे दो, तो शायद पैसा दिया था उसको। और ये अक्सर उससे तगादा कर रहा था, तो वो अक्सर वो बता रहा था कि भाई पेमेंट हुआ ही नहीं, तो वो शायद कॉर्पोरेशन से शीट वगैरह निकाल करके दिखाया कि भाई आपका तो पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब उसको शीट दिखाया तो शर्मिंदा हो गया, बोला कि ठीक है, मेरे पास तो अभी फ़िलहाल पैसा नहीं है, हम आपको 2 पार्ट में उसको दे देते हैं। तो वो एक तो एग्रीमेंट भी किया, अपना एग्रीमेंट अपने बेटा को व्हाट्सएप पर भेजा, उसका बेटा उसको कंफर्म किया, कुछ डिलीट करने के लिए कहा, तमाम चीज़ करने के बाद वो साइन करके दिया। और जहाँ साइन किया वो मेरे केटी रोड के वो साइबर में बैठ करके, उसका फुटेज है, तमाम फुटेज देख लीजिए, ना उसका हाथ फ्रैक्चर है, ना उसको कोई थ्रेट कर रहा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जब वो कंप्लेन किया है तो इन्वेस्टिगेशन हो, क्या सच्चाई है, सब आ जाएगा। कहा गया कि 8 लाख रुपए का चेक पे साइन कराया गया, जबरदस्ती 8,40,000 का। तो जबरदस्ती का क्या मामला रे भैया, चेक लेकर के आए थे, चेक तो आप ही मंगाया ना, उसका पैसा तो आप ही बोला ना कि दोनों हम एक साथ, पूरा पैसा एक साथ हम नहीं दे सकते उसको। आप खुद कह रहे हैं कि एक बार हम देंगे 50%, 3 महीने के बाद का डेट में, दूसरा हम 6 महीने के बाद के डेट में, तो इसमें और तो कुछ मसला था नहीं।
अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, उसका तो जवाब हम लोग नहीं दे सकते। अब जो आप कंप्लेन किया है तो ये इन्वेस्टिगेशन का बात है। उनका कहना है कि 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने अपने घर में बैठा कर उनको मारधर किए, उसके बाद में उसका वो दबाव में आकर सही किया वो। तो फुटेज देख लीजिए ना, देख करके आपको अंदाजा लगता है अगर ऐसा तो आप बोलिए। यहाँ जहाँ पर वो दस्तखत कर रहा है बैठ करके वहाँ पे मालूमात कर लीजिए कि भाई उसको कोई मारा, थ्रेट किया, वहाँ पर कौन लोग थे, कैसे किया, उस वक्त उसका हाथ टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था, तमाम बात मालूमात हो जाएगा। शासक दल के नेता कह रहे हैं कि आप जिस तरह से एक काउंसिलर होकर इस तरह से आप आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर कल वो लोग मेयर को डिपुटेशन भी देंगे, इसको लेकर आपको दे सकते हैं। रे भाई, डिपुटेशन देने में एतराज किसको है, आप दीजिए ना। सवाल है कि आपको तो इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत है ना। आप कोई किसी पर कोई अगर इल्जाम लगा रहा है तो इसका क्या हल है? इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी हो कि बात में सच्चाई क्या है। अब संजय साहा लड़का का जो इसका नाम है, उसके जिंदगी में मेरे ख्याल से कभी एक तो 290 भी केस नहीं हुआ होगा। उसको वो खुद आदमी बोलता है कि चले जाओ, मेरा बेटा देगा, चेक ला करके हमको दे दो, यहाँ हम इसको दे रहे हैं। वो लड़का जाता है, ला करके सिर्फ उसके हवाले कर देता है। इतने ही इन्वॉल्वमेंट है उसका नाम आप दे दिया। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जहां पर आप साइन किया वहां पर देखिए कि वहां पर कौन लोग थे, किनके प्रेशर में आप साइन कर रहे हैं। तो भी वो ये आपके निगरानी में हुआ था सही? ना, हम तो मौजूद भी नहीं है भाई, हम तो मौजूद भी नहीं। जहां साइन हुआ तो फुटेज में आप देख रहे हैं ना कि कहां पे साइन हुआ। तो ये तो जरूर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वहां कौन साइन कराया, कौन मौजूद था, कौन उसको मारा, कौन धक्का दिया, XYZ तमाम इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। इल्जाम लगाना तो कोई बात नहीं है। और कुछ लोगों को तो मौका चाहिए कि भाई एक मौका मिला है, इस मौका में अगर जोड़ दे गुलाम सरवर को तो जो वो परेशान किए हुए हैं कॉर्पोरेशन में वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा। ये सबसे कुछ होने जाने को नहीं है। मिला है न लोहा चोरी में मिला है, न जमीन के दलाली में है, न किसी करप्शन में। कोई फिक्र का बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, देखिए। আমরা এফআইআর করতে বলেছিলাম আগামী দিনে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে, যে একজন লোক তাকে কি কারণে মারা হলো এবং আমাদের তিনি পার্ষদ মানে কাউন্সিলর, একটা কাউন্সিলর হওয়ার পরে আমরাও প্রায় 25 বছরের কাউন্সিলর, আমরা জীবনে আজ পর্যন্ত কোনো লোকের সঙ্গে অপব্যবহার কি কোনোদিন আমাদের নামে ব্যাড রিপোর্ট কিছুই শুনবেন না। তো আমার তো মনে হয় অবিলম্বে তার শাস্তি হওয়া দরকার। আমরা কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে কাল তৃণমূলের তরফ থেকে একটা ডেপুটেশন দেবো নিজেরাই এর মাধ্যমে, যে এই পার্ষদকে হয় সাসপেন্ড আর উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। পার্ষদের কি নাম আছে? গুলাম সরোবর এবং তার চেলা চামুন্ডা দু একজন আছেন, তারা মিলে এইসব করেছেন কাজ কুকর্ম। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। पंचायत चुनाव के लिए मतदान को अब कुछ ही घंटे शेष बच गए हैं। मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मी शुक्रवार की सुबह से ही आसनसोल महकमा के विभिन्न DC केंद्रों पर पहुंच गए। इसके बाद वे लोग मतदान के उपकरण प्राप्त कर अपने अपने गंतव्य बूथ केंद्र के लिए प्रस्थान किए। इधर सालानपुर ब्लॉक के आचरा योगेश्वर इंस्टीट्यूट में DCRC सेंटर बनाया गया था, जहां से मतदान कर्मी अपने आवश्यक के सामान के साथ रवाना हुए। प्रखंड के 112 मतदान केंद्रों के लिए पुलिसकर्मी और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों के साथ रवाना हुए। सालानपुर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए मुख्य बूथ केंद्र 111 और सहायक बूथ केंद्र एक कुल 112 बूथ केंद्र है, जहां 52,676 पुरुष और 52,103 महिला मतदाता हैं। अर्थात कुल मतदाताओं की संख्या 10,000, जहां 52,676 पुरुष और 52,103 महिला मतदाता हैं। अर्थात कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,779 है। आज बारानी ब्लॉके इसी काउंटारे আমরা সমস্ত মহিলারা কাজ করছি, উৎসাহের সঙ্গে আমরা কাজ করছি, আমরা সকলে খুবই হ্যাপি। কত নম্বর কাউন্টার আছে এখানে 9 নম্বর কাউন্টার এটা আমাদের। কি নামটা কি আপনার? আমার অর্চনা তেওয়ারি। আজকে DCRC সেন্টার থেকে কি দেওয়া হবে? DCRC সেন্টারে এখন সব নাম প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট করা হচ্ছে, মানে কতজন সবাই এলে প্রেজেন্ট তারপরে DCRCতে মাল দেয়। কমসে কম ফার্স্ট এবং প্রিজাইডিংটা আসতে হয়, তারপরে এখানে মাল দেওয়া হচ্ছে। তারপরে পুলিশ ট্র্যাকিং করতে হবে, তারপর গাড়ি নিতে হবে, তারপরে পুলিশে নিচে স্টেশনে যেতে হবে। কোথায় আপনার কোথায় পড়েছে? আমার এখানেই পড়েছে।
আমার এই স্টেশনের মধ্যে নাম্বার 1 কতটা ভয়ের মধ্যে আছেন যে নিরাপত্তা নিয়ে? হয়তো আছে, কারণ যতক্ষণ না ঘুরতে যাচ্ছি ততক্ষণ সেখানকার পরিবেশ না দেখে তো বুঝতে পারবো না কী অবস্থা। এখানে তো বেশি আসছে, কোনো ভয় নেই। সেই ঘুরতে যখন যাব তখন সেইখানকার অবস্থা দেখে হবে। কেন্দ্র বাহিনী তো এখনো দেখা পাওয়া যায়নি। বাহিনী দেখা পাওয়া যায় কি চাইছেন কি? সব গ্রামের বসে আছি। কি চাইছেন কি বুথে কেন্দ্র বাহিনী থাকুক? কেন্দ্র বাহিনী থাকলে ভালো হয়, আমাদেরও মনে সাহস হয়, কাজটা তাড়াতাড়ি করা যায়। আর মনে ভয় থাকলে কাজও দেরি হবে। সব বেশিরভাগ বুথই প্রায় 1000-এর মতো করে তুলে নিয়ে আছে, কাজও দেরি হবে। 3টে করে ভোট। কি নাম আপনার? আপনারা তো ভোট কর্মী, ভোট করাবেন, এই অঞ্চলে এলেন, কোথাও কি মনের মধ্যে ভয় রয়েছে ভোট নিয়ে? ভয় সেরকম কিছু নেই, সবই শান্তিপূর্ণভাবে চলছে, ভয় আমাদের। হ্যাঁ, এখন তো কেন্দ্র বাহিনী দেখতে পাওয়া যায়নি, তাহলে কোথাও সেখানে মনের মধ্যে একটা বুঝতে গেলে হয়তো দেখতে পাবো বা থাকবে। আপনার নাম? অরূপ কুমার সিং। কোথায় আপনি ভোট ডিউটি করেন? ভোট আমরা বাস কাটিয়ে পড়েছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। अंडाल थाना के खांडा कॉलेज में पंचायत चुनाव के लिए डीसीआरसी सेंटर बनाया गया है। उस केंद्र पर मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं। मतपेटी सहित मतदान सामग्री वहां पहुंचा दी गई है। कॉलेज परिसर में कड़ी सुरक्षा से घिरा हुआ है। इस केंद्र के मतदान कर्मी अंडाल प्रखंड के मतदान केंद्र पर जाएंगे। प्रशासन सूत्र के मुताबिक चुनाव के बाद मतपेटी को वापस इसी केंद्र पर लाया जाएगा। साथ ही वोटों की गिनती भी इसी केंद्र में होगी। এখনো অ্যাটেন্ডেন্স দেননি, হেল্প ডেস্কের ফোনে আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে। এতে ঢুকেই আপনারা প্রথমেই দেখে নিন। আমরা রাউন্ড সেখানে নিয়ে যাওয়ার। হ্যাঁ, না না, এখনো পর্যন্ত কোনো অসুবিধা দেখছি না। সব কিছু সুন্দরভাবে সব কিছু ঠিকঠাক আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আমাদের সিস্টেমেটিক প্রত্যেকটা জায়গাতে গিয়ে কাউন্টারে প্রথমে আমরা প্রেজেন্ট দিলাম, তারপরে এখানে মোবাইল রেজিস্ট্রেশন করলাম। এবার আমাদের বাকি মেম্বাররা চলে এলে পরেই আমরা কালেকশন করে নেব। কালেকশন করে নিয়ে যেরকমভাবে ব্যবস্থা করেছেন এনারা বিকেল অ্যারেঞ্জমেন্ট, সেই বিকেল অ্যারেঞ্জমেন্টে গিয়ে বিকেলের সঙ্গে যাব আর তার সঙ্গে পুলিশ ট্যাগ করে নিয়ে আমরা আমাদের পিএসের দিকে রওনা হব। কোনো ভয় না, না কোনো ভয় আবার কি আছে, কাজ জানি। এবার ঘটনা হচ্ছে যদি কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ওই মুহূর্তে ঘটে, তার জন্য সমস্ত পোলিং এজেন্ট বা আদার্স যারা সব থাকবে তাদের সকলের সহযোগিতা নিয়ে কাজটা সুন্দরভাবে উদ্ধার করতে হবে, এটাই হচ্ছে মূল কথা। আমার নাম বিকাশ সাধুকা। আমার সেন্টার পড়েছে সকরা গ্রাম প্রি প্রাইমারি স্কুল। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। बांकुड़ा के 3100 पोलिंग स्टेशन में 27,70,514 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बांकुड़ा जिला प्रशासन सूत्र के अनुसार बांकुड़ा में कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या 3100 है, जिनमें मेन 335 एवं ऑक्सिलरी 65 है। बांकुड़ा में कुल सेक्टर 376 है। पुरुष मतदाताओं में 14,05,162 एवं महिला मतदाताओं की संख्या
13,65,000, 3,048 तथा अन्य 4 है। सीटों के तहत जहां जिला परिषद की 56, पंचायत समिति की 561 एवं ग्राम पंचायत की 3,129 सीट है। बताया गया है कि जिला परिषद में कहीं भी कोई निर्विरोध प्रत्याशी नहीं है, जबकि पंचायत समिति में निर्विरोध जीतने वाले प्रत्याशियों की संख्या 106 तथा ग्राम पंचायत में 665 है, जबकि कुल प्रत्याशियों की संख्या 9,968 है, जिनमें ग्राम पंचायत में 8,067, पंचायत समिति में 1,647 तथा जिला परिषद में 254 है। चुनाव कर्मियों को भी तैनाती बड़े रूप में हुई है। जिले में कुल पोलिंग पर्सनल की संख्या 19,681 बताया जाता है। जिले की कुल संवेदनशील पोलिंग स्टेशन की संख्या 116 है। सुरक्षा की दृष्टि से कुल सीसीटीवी 2,983 तथा वीडियोग्राफी 117 केंद्रों पर की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से भी बताया गया है कि सीएपीएफ की 38 कंपनियां आई है, जहां डीसीआरसी 22 तथा अन्य गणना केंद्र की संख्या भी 22 है। सुबह से ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चुनाव कर्मियों को अपने कार्यस्थल की ओर जाते देखा गया। जिले भर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। কি বলবো, যা কি বলার নেই আমাদের, যা চলছে এখন কি বলবো বলুন। ভোট নিয়ে তো নানা রকম টালবাহানা তৈরি হচ্ছিল, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল, কারণ গত পঞ্চায়েত নির্বাচন ভীষণভাবে রক্তাক্ত হয়েছিল। হ্যাঁ, এবারে আপনারা কি একদম এখন আমাদেরকে বলেছিল বাহিনী দেবো, কই বাহিনী তো দেখতেই পাচ্ছি না চোখে, কেন্দ্র বাহিনী চোখেও দেখতে পাচ্ছি না। এবার তাহলে আর কি বলবো বলুন, আমাদের এবারে মরা ছাড়া তো আর কিছু নেই। ভয় পাচ্ছেন? ভয় লাগবে না, ভয় তো সবাইকারই আছে, বলুন আছে কিনা, সবাই আরে ভয় আছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী না দিলে আপনারা অসুবিধা হবে আর কি, কোনো ঝামেলা ঘটলে সমস্যায় পড়বো, এইটাই হচ্ছে সমস্যা। আপনার নাম? আমার নাম সুজয় তন্তু ভাই। মনে হচ্ছে একটু তো ভয় তো থাকবেই, মনে হচ্ছে ভালোই হবে। কি মনে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী হলে কি ভালো? হ্যাঁ, ভালোই হবে, কেন্দ্রীয় বাহিনী এলে খুব ভালো হয়। রাজ্য পুলিশের কেন আস্থা নেই? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে। কেন ভয়টা কেন লাগছে? হ্যাঁ, ভয়টা কেন লাগছে? আর যদি কিছু ইয়েগুলো ঠিক মতো ইয়ে করতে না পারে, আমাদের উপর কোনো কিছু চাপ দেয়, এইভাবে ইয়ে করতে হবে, প্রেশার দিতে হয়, প্রেশার দিয়ে ভোট চাপ দেওয়া করা হয়, এই জন্যই ভয়টা বেশি। হ্যাঁ, প্রসিদ্ধ কুমার সরেন। बांकुड़ा सनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।